गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डेफिनेशन एंड उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे और देखे थे। इस क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वी हैव acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Students, acceleration acquired by an earth to attract any object is called acceleration due to gravity, and it is represented by a symbol g. स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। सो स्टूडेंट्स, g इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय एन अर्थ टू अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ is called gravity. A gravity is a vector quantity. Students, the value of g is approximately equal to 10। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनिट कह रहे हैं। कितना यूनिट होता है? 10 यूनिट। अगर एग्जैक्ट हम लोग बात करें तो जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 यूनिट होती है। स्टूडेंट्स, जब हम लोग यूनिट पढ़ लेंगे तो उस समय इस यूनिट के जगह पे हम लोग वह स्टैंडर्ड यूनिट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय एन अर्थ टू अट्रैक्ट any object towards its center is called acceleration due to gravity. Okay students, the next quantity we have potential energy. Potential energy. Students, potential energy is the stored energy. Potential energy is the stored energy. सपोज किसी ऑब्जेक्ट को जिसका मास m हो, ग्राउंड से h हाइट ले गए हो, तो जो एनर्जी स्टोर होगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल u, and its formula is mgh, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity, and h is the height. So students, हमने क्या कहा? Potential energy is the energy stored by an object. Energy stored by an object, and its formula is mgh. स्टूडेंट्स, चूँकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज होती है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वांटिटी वी हैव वर्क. स्टूडेंट्स, work can be defined as the force dot product with displacement. यानी force dot product with displacement is called work done, and it is represented by a symbol W. Students, f is a vector quantity and x is a vector quantity,
and the dot product of two vector quantities is a scalar, so work is a scalar quantity. Students, dot product of force and displacement is called work done. Okay students, the next quantity we have एनर्जी. एनर्जी को स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. स्टूडेंट्स, एनर्जी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वांटिटी वी हैव पावर. Students, the power is nothing but rate of doing work. Rate of doing work is called power. Rate of doing work is called power, and the rate means division of time. So students, W by T is nothing but power. It is represented by symbol P. चूँकि स्टूडेंट्स वर्क स्केलर होती है एंड टाइम भी स्केलर होती है, सो पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. ओके स्टूडेंट्स. Students, the next quantity we have uh, 14 area. Students, area is nothing but product of length into breadth is called area, and it is represented by a symbol A. Length is a distance, and also breadth is also a distance. So students, area is also a scalar quantity. Students, the next quantity है we have volume. Students, volume is nothing but a space occupied by an object, and it is represented by V, and it is nothing but length into breadth into height is called volume. Length is also a scalar, breadth is also a scalar, and height is also a scalar, so volume is also a scalar quantity. Okay students, the next quantity we have density. Students, density is nothing but mass per unit volume. ऐसे लिख सकते हैं, mass per unit volume is called density. Mass per unit volume is called density, and density is represented by a symbol D, and so mass is M and volume is capital V. So the formula of density is mass per unit volume, यानी mass divided by volume. Okay students, the next quantity we have pressure. Students, pressure is nothing but force per unit area is called pressure. Force per unit area is called pressure, and it is represented by symbol P. Students, pressure
इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ डेफिनेशन थे फिजिकल क्वांटिटीज़ के और उनसे रिलेटेड सम फार्मूलाज। स्टूडेंट्स, हमने बताया था आपको टू फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वी हैव रिक्वायर्ड या वी नीड फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले डेफिनेशन एंड फार्मूला के बारे में पढ़ा। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ के बारे में हमने देखा कि ये वैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है जो डिपेंड करती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर। एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ में ही हमने स्पीड पढ़ा, हमने वेलोसिटी पढ़ा, हमने एक्सेलरेशन पढ़ा, हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा, हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा, हमने एरिया पढ़ा, हमने वॉल्यूम पढ़ा, हमने डेंसिटी एंड प्रेशर के बारे में पढ़ा एंड इनसे रिलेटेड फार्मूलाज को हमने पढ़ा। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ था वो था सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या था स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। The third types of physical quantity is supplementary physical quantity. Supplementary physical quantity. Physical quantity. Students, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसे आए जिन्हें ना तो हमने फंडामेंटल कहा और न ही उसे हमने ड्राइव कहा। तो ये ऐसे क्वांटिटीज़ हुए, इन्हें हमने सप्लीमेंट्री कहा, मतलब एडिशन ऑफ यानी एडिशनल ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर जो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ रखा उसे हमने एंगल कहा। क्या कहा स्टूडेंट्स? एंगल। स्टूडेंट्स, एंगल को हम लोग दो प्लेसेस पे मेज़र कर सकते हैं और देख सकते हैं, एज ए 2D रिप्रेजेंटेशन यानी 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन और 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। एंगल एज अ 1D हो सकता है और एज अ 2D हो सकता है, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल एंगल इज कॉल्ड प्लेन एंगल, सॉरी 2 डायमेंशनल एंगल, ये 3 डायमेंशनल एंगल। 2 डायमेंशनल एंगल is called plane angle and 3 dimensional angle is called solid angle. Solid angle. Students, इनसे रिलेटेड हम लोग फार्मूला को देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए वी हैव अ सर्कल, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड दिस इज नथिंग बट रेडियस, दिस इज द पॉइंट ए। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल है यहाँ पे जो मूव कर रहा है इस सर्कल पे यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे, एंड मूव करता हुआ पॉइंट ए से कहाँ पहुँच गया? पॉइंट बी पे। And this particle subtend at angle theta at the center C, and the length of A to B along a circular path is nothing but
length of arc, length of arc. And the length of arc is represented by a symbol L, and a length of arc can be defined as length of arc can be defined as product of angles subtend at the center and the radius of the circle. So students, from here we can find theta as a length of arc which is L divided by radius. So students, this is the plane angle. Plane angle means it is the 2D representation of angle. इसे हम लोग प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड प्लेन एंगल. ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला आया प्लेन एंगल का क्या है स्टूडेंट्स? थीटा इक्वल टू L अपॉन R. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एंगल हमारे पास क्या है? सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल स्टूडेंट्स, solid angle is nothing but 3D representation of angle is called solid angle. Students, आप सब ने एक सॉफ्टी खाया होगा, कुछ इस तरह से सॉफ्टी होता है स्टूडेंट्स. एंड सॉफ्टी में ये जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ओमेगा, एंड द सिंबल ओमेगा इज नथिंग बट सॉलिड एंगल. क्या है स्टूडेंट्स? सॉलिड एंगल है. दिस इज द 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल. इसे आप प्लेन में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे ही सॉलिड एंगल कहते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कोन. ये कोन है, दिस इज क्या कह सकते हैं इसे? कोन कह सकते हैं. आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कोन. सो स्टूडेंट्स, द सॉलिड एंगल can be defined as area divided by a square of radius. Solid angle can be defined as area divided by a square of radius is called solid angle. Student, solid angle क्या है? 3D representation of angle is called solid angle and इसे define किया गया area divided by r square. Okay students, ये रहा हमारा solid angle, यानी इसे रिप्रेजेंट किया गया सिंबल ओमेगा. स्टूडेंट्स, इस सिंबल को कहा जाता है ओमेगा. एंड इन प्लेन एंगल दिस सिंबल इज कॉल्ड थीटा. ये ग्रीक वर्ड है ओमेगा एंड थीटा. ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, आप लोग नॉर्मली ये देखा होगा कि अगर हमें लेंथ ऑफ रॉड मेज़र करना हो, सपोज कीजिए लेंथ ऑफ रॉड मेज़र करना हो बाय एन इंच टेप, तो जो लेंथ ऑफ रॉड आएगा स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि 10 मीटर आए. कितना है स्टूडेंट्स? 10 मीटर. इंच टेप की हेल्प से हमने क्या किया? रॉड की लेंथ को नापा एंड जो उसका जो मेजरमेंट आया वो 10 मीटर आया. तो स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 थिंग्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. वन इज वैल्यू and other is its standard which is called unit. So students, to represent completely any physical quantity we require some numerical value and some standard, and that standard is called unit. So students, this is nothing but numerical value
numerical value, and this is nothing but unit, some standard. स्टूडेंट्स, आपने इस एग्जाम्पल में क्या देखा कि किसी भी क्वांटिटीज़ को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साथ ही साथ यूनिट की आवश्यकता होती है। अगर हम इनमें से किसी भी एक को लीव कर दें तो हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हमने कहा लेंथ ऑफ रॉड इक्वल टू 10, विच इज एम्बिग्यूअस, ये करेक्ट नहीं है, इसे कुछ भी मीनिंग हासिल नहीं हो रहा। द लेंथ इज व्हाट, द लेंथ ऑफ रॉड इज व्हाट, तो आपने कहा 10, तो 10 क्या है? तो स्टूडेंट्स ये क्या है? एम्बिगुअस है, आप इसे कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने लेंथ ऑफ रॉड को कहा मीटर, तो मीटर कितना? तो स्टूडेंट्स कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मीटर हमने मीटर कहा जो कि एम्बिगुअस हुआ, इससे हम लोग कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को, कि अगर या तो न्यूमेरिकल पार्ट लीव हो जाए, मिसिंग हो जाए, या तो यूनिट मिसिंग हो जाए, तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये जो लेंथ ऑफ रॉड इज नथिंग बट अ फिजिकल क्वांटिटी, यानी लेंथ इज कहते फिजिकल क्वांटिटी, and physical quantity required some numerical value and unit to represent completely. So students, we can say physical quantity Q is nothing but numerical part and some unit. So Q is represented by N into U. Suppose आप इसे लिख सकते हैं to represent a physical quantity completely, we need numerical part and unit, यानी सम स्टैंडर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, अगर लेंथ ऑफ रॉड की जगह जो हमने 10 लिया था, उस 10 की जगह अगर हमने 5 ले लिया, यानी 10 मीटर की जगह हमने कितना ले लिया? 5 मीटर, तो क्या है स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ रॉड की जगह क्या कोई अदर फिजिकल क्वांटिटीज आ जाएगी? तो नहीं है स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, वो किसी एक ही फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को बदलने से या यूनिट को बदलने से जो हमारा, यानी यूनिट कहने का मतलब यूनिट बदलना, जैसे कि मीटर से अगर सेंटीमीटर में बदल देते हैं, यूनिट से मीटर से सेंटीमीटर में बदल देते हैं, या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कह सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता है वो क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, n इंटू यू इक्वल टू कांस्टेंट, हमने कैसे देखा कि अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को चेंज कर लें तभी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं बदलती है, या हमने मीटर की जगह सेंटीमीटर यूज़ कर लें तब भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होता है, यानी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा? n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई कि n इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u, n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ऐसा कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं कि दिस इज द प्रोपोर्शनल साइन। अगर हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमें कुछ कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग ऐड करते हैं सम कांस्टेंट k एंड डिवाइडेड बाय u, एंड दिस सिंबल k इज कांस्टेंट। क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट है। सो स्टूडेंट्स n इंटू यू क्या हो गया स्टूडेंट्स? कांस्टेंट k हो गया, कांस्टेंट k। सो स्टूडेंट्स n इंटू यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट लिख सकते हैं। सो हम लोग स्टूडेंट्स n इंटू यू को क्या लिखा जा सकता है? n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू u। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम लोग u की वैल्यू को अगर बढ़ा देते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कम हो जाएगा। अगर हम u को घटा देते हैं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स? बढ़ जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? बढ़ जाएगा। तो सो स्टूडेंट्स हमारे पास लेंथ मेजर करने के दो यूनिट होते हैं, एक होते हैं मीटर, एक दूसरा होता है क्या स्टूडेंट्स? सेंटीमीटर। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि मीटर क्या होता है और बिगर यूनिट होता है, और सेंटीमीटर क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मॉलर यूनिट होता है। सो इसलिए स्टूडेंट्स अगर हम लोग मीटर यूज करते हैं तो उसकी क्वांटिटी सपोज कीजिए 10 मीटर हुआ। अगर हम लोग उसी की जगह अगर हम लोग स्टूडेंट्स सेंटीमीटर यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? 10 मीटर की जगह कितना आ जाता है स्टूडेंट्स? 1000 सेंटीमीटर आ जाता है। कितना आ जाता है स्टूडेंट्स? 1000 सेंटीमीटर आ जाता है, क्योंकि 1 मीटर इज़ नथिंग बट 1000 यानी 100 सेंटीमीटर। कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 मीटर इज़ 100 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम लोग मीटर जो कि एक लार्जर यूनिट हुआ, क्या हुआ स्टूडेंट्स? लार्जर यूनिट हुआ, एंड सेंटीमीटर क्या हुआ स्टूडेंट्स? स्मॉलर यूनिट हुआ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग लार्जर यूनिट यूज़ करते हैं तो जो उससे रिलेटेड जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वह स्मॉलर होता है, और जब हम लोग स्मॉलर यूनिट को यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होता है स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। आप देख सकते हैं ऐसे 10 मीटर इज़ नथिंग बट 1000 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं दिस इज़ द n1 एंड दिस इज़ नथिंग बट u1, हम लोग इसको रिप्रेजेंट किए, एंड दिस इज़ नथिंग बट n2 एंड दिस इज़ नथिंग बट u2। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि u1 बड़े होने के कारण n1 क्या हो गया? छोटा हो गया, एंड u2 स्मॉलर होने के कारण n2 क्या हो गया स्टूडेंट्स? बिगर वैल्यूज जगह गया, यानी 1000 हो गया, और जबकि n1 क्या हुआ स्टूडेंट्स? 10 हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अगर u1 बिगर हो यानी बड़ा हो, या ऐसे कह सकते हैं u1 इज स्मॉलर देन u2, दिस इम्प्लाइज दैट न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ स्टूडेंट u1 क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे बड़ा है, u1 इज ग्रेटर, ऐसे लिख सकते हैं। u1 इज ग्रेटर वैल्यू यानी मीटर इज ग्रेटर वैल्यू देन द सेंटीमीटर यानी यूनिट 2, दिस इम्प्लाइज दैट numerical value 1 is less than numerical value of 2। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में स्टूडेंट्स हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कम्प्लीटली उसके बारे में देखा। फिजिकल क्वांटिटीज़ को कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंड सम स्टैंडर्ड विच इज़ कॉल्ड यूनिट दोनों की ही आवश्यकता पड़ती है। एंड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड फिजिकल क्वांटिटीज स्टूडेंट्स कैसे एसोसिएटेड होती है? तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के। अगर हम लोग यूनिट को बढ़ाते हैं यानी बड़े वैल्यूज़ को लेते हैं यूनिट की, तो जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होगा क्या होगा स्टूडेंट्स? स्मॉल हो जाएगा। एंड अगर हम लोग स्टूडेंट्स यूनिट को स्मॉल करते हैं, छोटा वैल्यू लेते हैं, तो जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा क्या स्टूडेंट्स? बड़ा हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे यूनिट के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? यूनिट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनिट के बारे में। अभी हमने स्टूडेंट्स देखा एक कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमें न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट की आवश्यकता पड़ती है,
और यूनिट को हमने स्टूडेंट्स अभी अभी एग्जांपल में देखा कि लेंथ ऑफ रॉड को मेज़र करने के लिए हम लोग यूनिट जो यूज़ करते हैं वो मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है। तो सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेशन ऑफ यूनिट पढ़ेंगे कि यूनिट होते क्या है एंड व्हाट आर द यूनिट यूजेस फॉर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।